Okay, students, welcome back to my channel, Concept Play Tutorial. I'm going to discuss some important numericals related to the chapter Light, 10th class. Okay, so the first numerical is what is the focal length of a lens that produces a real image three times as large as object if the distance between image and object is 1 meter. Okay, now they have not mentioned length, okay, but we can see it's forming a real image. It's forming a real image. If it's forming a real image, it means the lens must be which lens? Convex lens. Okay, the lens must be convex lens because convex lens only makes the real image, concave makes the virtual image. So we are sure about the lens, it must be a convex lens. Okay, now what else is given? They have given that the image is three times as large as the object. Okay, now we know for lens. Okay, the formula of magnification is h dash upon h equal to v upon u, where h dash is height of image, h is height of object, v distance of image from the pole, u is distance of object from the pole. Right, now what they have given, that the image is three times. Okay, it means the image is three times as large as object. Now, of course, we have to put here negative sign. Why? Because the image is formed below principal axis, and all the distance measured below principal axis is taken as negative. It will be equal to what? V upon 0. You can see h cancel out, so we are left with minus 3 equal to V upon U, or what we got? V equal to minus 3U. Right? Now, let's see what else is given. Distance between image and object is 1 meter. So, okay, it means if I make here lens, okay, if I make here lens and okay, I'm going to make a convex lens. This is a convex lens. Now, what they have given? They have given see, if if keep object here, right, and few image is formed here, somewhere here. So the distance between object and image is how much? 1 meter. So this is the distance is 1 meter given, or 1 meter you can say 100 centimeters given. Okay. So now you know the distance measured, the left to the lens is taken as negative, to right is taken as positive. Okay. So but overall they have given 100 centimeter. It means okay, the value of u, okay, magnitude of u, that's why I'm putting the here absolute value, and magnitude of v. Okay, if we have take same as positive only, so u plus v, how much they have given? 100 centimeter. Okay, but actually when you put the value of u, okay, so you have to take as a negative, because to the left side all the distance I made in negative sign, and v will be positive, so minus u plus v will be equal to 100. ओके, अब अब आप v की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दो, तो माइनस यू प्लस v की वैल्यू कितनी है? -3u, -3u इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 100 आ गया. दिस कम टू बी 4u इक्वल टू 100, और u इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? -25 सेंटीमीटर. देखो हमारे पास u की वैल्यू आ चुकी है. राइट, अब हमें क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ. ओके, हमें क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ फाइंड करना है. तो नाउ लेंथ के लिए हमारे पास जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/v माइनस 1/u. तो अब यहाँ पर अगर वैल्यूज पुट करते हैं, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -3u है. देखो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू कितनी है? -3u. तो मैं यहाँ पर अगर -3u यहाँ पुट कर दूँ, -1/u. नाउ अब वैल्यू पुट करो दोनों की, इट विल बी 1 by -3 into -25, राइट. -1 by -25, हमारे पास u की वैल्यू यहाँ पर -25 है, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ आएगा 1/75
माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या 1/25, राइट। तो यहाँ से आपका जो एलसीएम आएगा, मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, मेरे को जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर रहा हूँ। तो 1/f इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 75, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 3, राइट। तो 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/75, तो f कितना आ गया 75/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 1 4, 3 कैरी, 4 8 32, एंड कैरी 4 5 32, 3 कैरी 4 7 28, ये आ जाएगा हमारा 18.75 सेंटीमीटर आ गया। तो ये है हमारी फोकल लेंथ। आप देख सकते हो फोकल लेंथ पॉजिटिव में आ रहा है, और कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होता है, इसलिए हमारा आंसर करेक्ट आया है। ठीक है, आई होप न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू, राइट। ओके, अब हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, an object is placed at a distance of 25 centimeter away from converging mirror of focal length 20 centimeter। अब हमारे पास यहाँ कन्वर्जिंग मिरर है, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट कॉनकेव मिरर। ठीक है, हमारा जो कन्वर्जिंग मिरर होता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ओके, कॉनकेव मिरर है। नाउ अब इन्होंने क्या बोला है कि कनकेव मिरर के डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा रहा कनकेव मिरर, ये हमने बनाया कॉनकेव मिरर। ओके, ये हमारा पोल है, ये है हमारा फोकस, और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ से लेके पोल तक का डिस्टेंस हमें दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। अगर ये 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास कितना होगा, डबल उसका, 40 सेंटीमीटर, राइट। ये हमारा 40 सेंटीमीटर होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पे, मीन्स द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ कहीं पर उन्होंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, राइट, 25 सेंटीमीटर पे। अब हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा होता है तो इमेज क्या बनती है, बियॉन्ड सी बनती है, यहाँ कहीं बनती है, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट सी और आपके बीच में बनता है तो इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी और बड़ी बनती है, वी नो दैट, राइट। ये हमारी फर्स्ट पोजिशन है, ये हमारी फर्स्ट पोजिशन की इमेज है हमारी, राइट। नाउ अब क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द इफेक्ट ऑन द नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज इफ द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। वो बोलता है कि जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है उसको अगर हम, देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 25 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है, 25 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है, उसको अगर हम 15 सेंटीमीटर लिया, मीन्स 15 कहाँ होगा, अब फोकस अगर 20 है तो 15 उसके अंदर होगा, यानी क्या वो कह रहा है ऑब्जेक्ट को आप अंदर ले आओ, फोकस के विद इन अंदर ले आओ, फोकस और पोल के बीच में। तो जस्टिफाई योर आंसर विदाउट यूजिंग अ मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो आपने क्या बोलना है, अब क्या होगा जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा, तो आपको पता है कि इस केस में जो इमेज है वो कैसे बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है जी, एंड इट्स फॉर्म बिहाइंड द मिरर, राइट। तो व्हाट विल बी योर आंसर, ओके, you will write that, okay, when you take object from 25 to 15 centimeter, then what will happen, the image will become virtual, virtual in nature, okay, the image will become virtual in nature, right। पहले रियल थी, उसके बाद जब वो फोकस के अंदर चले आएगी तो इमेज कैसे हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी। तो यही उन्होंने पूछा क्वेश्चन में, तो ये इसका आंसर है। ओके, I hope this numerical is clear to you. Let's move on to next numerical. The third numerical is how are power and focal length of a lens related। पहले तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं, राइट, कि पावर और फोकल लेंथ कैसे रिलेटेड होता है। तो पावर इज गिवन बाय 1/f, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्लियर हो गया जी।
नेक्स्ट है, यू आर प्रोवाइडेड विद टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, विच लेंस विल यू यूज टू ऑब्टेन मोर कन्वर्जन लाइट। देखो, ऐसा है कि जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना लेंस जो है लाइट को मोड़ेगा। आपको पता है कि जो ओल्ड लोग होते हैं ना, राइट, उनका लेंस जो है, उनका स्पेक्टिकल लेंस मोटा होता है, राइट, और जो यंग होते हैं उनके लेंस की जो ना मोटाई होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो जितना मोटा लेंस होगा उतनी वो ज़्यादा लाइट क्या करेगा, बेंड करेगा। जितना पतला होगा वो कम बेंड करेगा, राइट, उतना वो कम बेंड करेगा। तो देखो, ये कम बेंड कर रहा है, ये ज़्यादा कर रहा है, तो जितना ज़्यादा पावर होगा उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी, राइट। अब देखो, अब P1 जो है हमारा कितना है, 1/20 सेंटीमीटर है, राइट। इसको हम अगर 100 से करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है इसको, राइट। तो ये हमारे पास जो पावर है इतनी आ रही है, 5 डायोप्टर आ गई है। वैसे ही अगर आप सेकंड लेंस का पावर निकालोगे जिसमें आपको 40 सेंटीमीटर दिया हो, तो 40/100 इक्वल टू 100/40 कट गया, 2 to the 4, 2 5 10, ये आ गया 2.5 डायोप्टर आ गया। देखो, आप देख सकते हो कि इस वाले की पावर ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल होते 5 डायोप्टर, और ये कितना हमारा आ रहा है, 2.5 डायोप्टर, राइट। तो विच लेंस यू विल यूज the length with power 5 diopter, or you will use length with focal length 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा, जिसका फोकल लेंथ कम होगा, दैट इज 20 सेंटीमीटर वाले जो लेंथ है, वो लाइट को ज़्यादा कन्वर्ज करेगा, ज़्यादा बेंड करेगा, राइट। तो दिस वाज आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। The fourth numerical is refractive index of diamond with respect to glass is 1.6, right। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा दिया हुआ है डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है, ये हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 1.6 दिया हुआ, राइट, 1.6। तो आपको और क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है, याद रखना। जब भी एब्सोल्यूट बड़ा आ जाए इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू क्या दिया हुआ है, एयर दिया हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, राइट, विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, मतलब आपको डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आपको फाइंड करना है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो तीनों को रिलेट करेगा। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए ध्यान से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास अगर निकालना है, तो ऊपर जो डायमंड पहले आ रहा है तो ऊपर डायमंड आएगा, ग्लास पास में आ रहा है तो नीचे ग्लास आएगा। तो ये आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, राइट। ये हमें दिया हुआ 1.6 इक्वल टू, ये हमें निकालना है, राइट, मैं एयर नहीं लिख रहा हूँ, और ये हमें दिया 1.5। तो हमारा आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.5, और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 16 × 15 को, तो आपका 5 33 5 5 7 8 × 6 एंड 1, ये आ जाएगा 14, और ये आ गया 240 आ गया जी, है ना। तो दो जीरो भी लगे हुए हैं, इसको हटाओगे तो आपके पास 10/10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.4। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि इसके यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं, ऊपर भी सेम क्वांटिटी नीचे क्वांटिटी है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो आपका जो आंसर है वो है 2.4। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हमारा कितना गया, 2.4। ओके, आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। So numerical number 5 is, a concave mirror produces 3 times magnified image of object placed at 10 centimeter in front of it। तो हमें u की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारा जो है u दिया हुआ है 10, यानी कि -10 सेंटीमीटर, राइट। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, तो इसको लिखना है आपने नेगेटिव, राइट। अब फोकल लेंथ हमें दिया नहीं हुआ है, राइट, हमें दिया हुआ है मैग्निफिकेशन, राइट। उसका जो वैल्यू है वो बोल रहा है कि 3 टाइम्स मेन पर इमेज बन रहा है। अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है
कि हमें ये नहीं पता कि जो इमेज बन रही है ये रियल है वर्चुअल है, क्योंकि आपको पता है कि कॉनकेव मिरर में, राइट, हमारे पास केस है कि जब आप ऑब्जेक्ट रखते हो बिटवीन सी एंड एफ, तब भी हमारे पास एक मैनिफाइड इमेज बनती है। इस केस में ये इमेज बन रहा है रियल। और अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो कहाँ, पोल और फोकस के बीच में, है ना, इस केस में भी हमारी जो इमेज है वो मैनिफाइड बनती है। ये जो केस है ये हमारा कौन सा है, वर्चुअल केस है। तो हमें ये नहीं पता है कि इस केस में ये रियल इमेज की बात कर रही है या वर्चुअल इमेज की बात कर रहे हैं, राइट। और मैग्निफिकेशन दोनों के लिए जो है डिफरेंट होता है, राइट। क्यों? क्योंकि अगर इस केस में मैग्निफिकेशन निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश बाय एच होता है। अब क्योंकि इमेज नीचे बन रही है तो ये आपका नेगेटिव में आएगा वैल्यू, है ना, और एच आएगी पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो एम है रियल के लिए होती है नेगेटिव। और यहाँ पर दोनों ही जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं, तो यहाँ मैग्निफिकेशन आ जाएगी पॉजिटिव, राइट। तो इस केस में हमें ये नहीं पता है कि एम नेगेटिव लेना है पॉजिटिव लेना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों के साथ सोल्व करना पड़ेगा, राइट। हमें एम जो है एक बार नेगेटिव लेना पड़ेगा और एक बार क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि इन्होंने दिया नहीं हुआ है। तो अगर तो इमेज बन रही है रियल, अगर तो इमेज बन रही है हमारी रियल, ये जो फर्स्ट केस मैंने यहाँ लिखा है, राइट। तो इस केस में जो m की वैल्यू है वो लूंगा -3। देखो इन्होंने बोला 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, तो आंसर क्या आएगा, -3/h/h, दैट इज -3 आएगा, -3h/h -3 आएगा, राइट। तो अब हमारे पास m का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -v/u, राइट। क्योंकि ये मिरर है, मिरर के लिए -v/u होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, m की वैल्यू आ गई -3 और v निकालना है। और u जो है हमें कितना दिया हुआ, -10 दिया हुआ है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू हमारे आ जाएगी -30 सेंटीमीटर, क्लियर। और अगर हम यहाँ पर वर्चुअल इमेज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो m है वो लेंगे हम +3, राइट। और m जो है वो हमारा क्या फॉर्मूला, -v/u, यहाँ पर आप +3 पुट करोगे, -v बाय या जाएगा -10, माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ पर हमारा v जो आएगा वो आएगा 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही आंसर पॉसिबल हैं, इसलिए हमें दोनों ही निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। लेट्स मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 6। So numerical number 6, when a bright object is placed 10 centimeter away from a concave mirror. तो bright object is placed, मतलब हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ और ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो हमारा जो u दिया हुआ है वो दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, राइट। इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब इन्होंने दिया हुआ कि इमेज कौन सा बन रहा है, रियल बन रहा है। तो रियल इमेज हमेशा कॉनकेव के लेफ्ट साइड पे बनता है। तो यहाँ पर जो v है वो भी हम लेंगे नेगेटिव में -40 सेंटीमीटर, राइट। तो आपने क्या निकालना, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो ये तो काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है। तो जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/u + 1/v। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आ गया -10 + 1/-40। तो ये आ गया 1/f इक्वल टू, राइट, ये आपका एल्सियम आ जाएगा यहाँ पर 40, यहाँ आ जाएगा -4 और यहाँ आ जाएगा -1। तो 1/f आ गया आपका -5/40, राइट। तो यहाँ कैंसिल हो जाए, कट जाएगा ये 5/40। तो आपका जो फोकल लेंथ है वो आ जाएगा -8 सेंटीमीटर। तो दिस वॉज वेरी इजी न्यूमेरिकल, राइट। लेट्स मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 7. Seventh numerical is find the power of convex lens which forms the real and inverted image of magnification -1। तो पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, n की वैल्यू -1 दी हुई है, और नेगेटिव का मतलब रियल इमेज होता है हमेशा, ठीक है। जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव दिया होता है इसका मतलब रियल इमेज होता है, रियल दिया भी हुआ है वो, ठीक है। ऑफ ऑब्जेक्ट
विच इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ कितना, 20 सेंटीमीटर। तो आपको जो u है वो दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, या तो फाइंड पावर ऑफ लेंस, राइट। ओके, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस निकालना है तो हमें पता है कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f। तो अगर हमारे पास फोकल लेंथ आ जाए तो हम पावर निकाल सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है वो होता है सॉरी वी अपॉन यू, लेंथ है ना, लेंथ के लिए प्लस वी अपॉन यू होता है। एम की वैल्यू -1 दी है। यहाँ पर आपका जो आपका वी और यू जो है -20 दिया हुआ है, तो यहाँ से जो वी है वो आ जाएगा +20 सेंटीमीटर। ये हमारा वी आ चुका है, राइट। और यू हमें गिवन है, वी आ गया हमारा। अब हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो 1/f लेंथ के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1/v -1/u। तो ये आ गया 1/f इक्वल टू 1/v, 20 पुट कर दो, -1/u दिया हो -20। तो 1/f आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा, 1/20 प्लस 1/20। तो 1/f आ जाएगा 2/20, या f आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो वो लेंथ आ गया, वो लेंथ कन्वेक्स लेंथ का कितना आ गया, +10 सेंटीमीटर। अगर अपने पावर निकालनी है, राइट, तो पावर का फॉर्मूला जैसे हमें पता है P इक्वल टू 1/f होता है। तो ये आ गया 1/10। अब क्योंकि पावर का यूनिट डायप्टर होता है और डायप्टर के लिए ये जरूरी है कि फोकल लेंथ जो है वो मीटर में होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर हमारा जो फोकल लेंथ है वो आया सेंटीमीटर में। इसमें मीटर में करने के लिए अपॉन 100 करेंगे, तो वो 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका जो पावर आ गया वो आ गया +10 डायप्टर। तो ये है आपका आंसर, राइट। चलिए अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 इज the image of candle flame placed at a distance of 30 centimeter from a spherical lens is formed on a screen placed on the other side of lens। देखो आप इस न्यूमेरिकल में इन्होंने ये नहीं बताया कि जो लेंस हमारा है ये कौन सा लेंस है, राइट। हमारा लेंस जो है वो उन्होंने बताया नहीं कौन सा लेंस है, लेकिन एक हिंट दे दिया उन्होंने कि ऑब्जेक्ट के, अगर ऑब्जेक्ट एक तरफ पड़ा है तो जो इमेज है वो लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है। तो ये चीज़ तो सिर्फ पॉसिबल है किस में, कॉन्वेक्स लेंस में, क्योंकि कनकेव लेंस में तो ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही तरफ बनता है। इसमें दिया हुआ कि अगर कैंडल फ्लेम यहाँ पड़ा हुआ है तो इमेज जो है वो 60 सेंटीमीटर पे दूसरी तरफ बन रही है। यहाँ 60 सेंटीमीटर इमेज का दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, राइट। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये कौन सी लेंस की बात कर रहे हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, राइट। तो ठीक है जी। तो हमारे पास u की वैल्यू दी हुई है -30 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है तो u आ गया -30। और जो v है वो आपको आएगा +60 सेंटीमीटर, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो बन रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, राइट साइड पे। तो v आ गया +60, राइट। तो यहाँ से हम इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो गया 1/v -1/u। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसकी। तो 1/60 -1/-30। तो ये आपका आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/60 प्लस 1/30 आ गया। तो 1/f इक्वल टू एल्सियम आ जाएगा 60, 1 + 2, राइट। तो 1/f आ गया 3/60। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 20। तो आपकी जो फोकल लेंथ है वो आ जाएगी +20 सेंटीमीटर। तो अभी हमारी फोकल लेंथ आ गई, राइट। अब क्या फाइंड करना है, वो बोल रहा है इफ द हाइट ऑफ फ्लेम, यानी कि यहाँ पर कैंडल फ्लेम है ना, ये कैंडल रखा हुआ है यहाँ पर और कैंडल की ऐसे फ्लेम बन रही है। तो हाइट ऑफ फ्लेम हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यानी कि आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो एच का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ये लेना है पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्स के ऊपर की तरफ है। तो एच पॉजिटिव आएगा। तो आपने निकालना हाइट ऑफ इमेज, आपने एच डैश जो है वो निकालना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है लेंस में वो होता है एच डैश बाय एच इक्वल टू क्या होता है,
प्लस वी अपॉन यू, राइट। लेंस के लिए हमारे पास प्लस वी अपॉन यू होता है। तो एच डैश बाय एच कितना दिया हुआ 3 इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी आई हमारी, वी है 60 और यू हमारा आया -30। तो ये जीरो से जीरो कैंसल, 3 1 3 3 2 6। तो हमारे पास जो एच डैश आएगा वो आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 ऊपर चले जाएगा। तो एच डैश हमारे पास कितना आ गया, -6 सेंटीमीटर। अब मैंने शो करता है कि जो इमेज है वो रियल बन रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, राइट। तो ये आपका दोनों आंसर आ गया, फोकल लेंथ भी निकल गया और हाइट ऑफ इमेज भी निकल गया। I hope this numerical is clear to you. Let's move on to next numerical number. So numerical number 9 is one student uses a lens of focal length plus 50 centimeter, another of minus 50 centimeter. So what is the nature of lens and its power used by each of them? Which of the two lenses will always give a virtual and diminished image irrespective of position of the object? चलिए, तो हमें एक स्टूडेंट के पास दो लेंस है, राइट। तो एक का जो फोकल लेंथ है वो दिया हुआ है +50 सेंटीमीटर और दूसरे का जो फोकल लेंथ दिया हुआ है f2 वो दिया हुआ है -50 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दो लेंस है, राइट, f1 और f2। हमें पता है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया अभी कि जो प्लस वाला है वो हमारे पास कौन सा लेंस है, वो हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस है। और नेगेटिव वाला हमारे पास कौन सा है, ये हमारा है कॉनकेव लेंस। ओके, अब पहला पार्ट हमारा हो चुका है। सेकंड पार्ट वो पूछ रहा है एंड इट्स पावर यूज बाय ईच अदर। तो दोनों में से हमने इसकी पावर निकालनी है। अब पावर जो हमें पता होता है, पावर को हम लोग कहता है रेसिप्रोकल फोकल, तो 1/f1 इक्वल टू P1। वैल्यू पुट करते हैं, P1 कितना आ जाएगा 1/50, क्योंकि ये दिया हुआ हमें सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करेंगे। तो ये कट गया जी, 5 तो आपका जो पावर है फर्स्ट लेंथ का वो कितना गया, +2 डायप्टर। इसी तरह आप P2 निकाल सकते हो 1/f2। तो P2 हमारे पास आ गया 1/-50, राइट, इंटू 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ P2 जो है वो आ जाएगा -2 डायप्टर, राइट। दोनों का आंसर सेम आ रहा है आपका, लेकिन एक का पॉजिटिव है, एक का क्या है, नेगेटिव है। तो ये भी हमारा हो गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द टू लेंसेज विल ऑलवेज गिव द वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है कि ये जो है कौन सा होगा, कनकेव लेंस होगा, क्योंकि कनकेव लेंस हमेशा जो है वो किस तरह का इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड और वर्चुअल। जहाँ मर्जी आप ऑब्जेक्ट रख दो तो इमेज हमेशा जो है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में बनती है और छोटी बनती है। तो ये आपका वर्चुअल इमेज बनता है, राइट। तो लास्ट पार्ट का आंसर जो है वो है कनकेव, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10। The refractive index of glass and water with respect to air are 3/2 and 4/3 respectively. If speed of light in glass is 2 into 10 raised per 8 meter per second, find the speed of light in water, right? तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये हमें दिया हुआ कितना 3/2। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें दिया हुआ है 4/3। और क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास हमें दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपको फाइंड करना है। तो ये चीज़ें दी हुई हैं, आपको वाटर में फाइंड करना है। तो वैसे तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर नहीं दिया हुआ है तो हम उसको पहले निकाल देते हैं। अदरवाइज हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ होता है, बट हम उसको निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, राइट। कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज c/स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। और ये ग्लास वाला स्पीड हमें दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ से NGA हमारा कितना दिया हुआ है 3/2 इक्वल टू c/, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ 10 रेज पर 2 × 10⁸। तो यहाँ से आपका 2 और 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और जो
सी की वैल्यू आएगी, वो आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लो भी हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर निकाल ली है, राइट। सी इज वेलोसिटी लाइट इन एयर। तो अब हम फिर से फॉर्मूला लगाते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें कितना दिया, 4/3। तो इसकी अगर फॉर्मूला पुट करें, इसका फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल टू क्या है, 4/3, राइट। तो ये सी निकाल चुके हैं, ये यहाँ पुट कर दो, ये वी डब्ल्यू नीचे आ जाएगा, ये हमारा आ गया 4/3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर विल बी इक्वल टू 9 × 10⁸ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा, राइट। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हमारा आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लो भी ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया है। वैसे इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, अगर आपने डायरेक्ट भी निकालना है तो वो भी बताता हूँ मैं। अगर आपने डायरेक्ट निकालना है तो इसका सीधा सा फॉर्मूला लग जाएगा। कैसे, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C/V, राइट। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 4/3 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट आपका, आपको पता होना चाहिए 3 × 10⁸, और यहाँ से v आप निकाल सकते हो। आप डायरेक्टली इस स्टेप पे पहुंच जाओगे, आपको ये सारा स्टेप करने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए, लेकिन इस न्यूमेरिकल में इन्होंने वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर नहीं दिया होता है, इसलिए पहले हमने वो निकाला, उसके बाद हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर निकाल लिया। ओके, सॉरी मैं बार बार वेलोसिटी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली ना लाइट की तरह हम स्पीड नहीं वेलोसिटी यूज़ करते हैं, राइट। तो आप उसको स्पीड भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, बट आई यूज द वेलोसिटी। ओके, चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेवल पे। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आप देख सकते हो कि न्यूमेरिकल नंबर हमारा ये है 11, राइट। 11th न्यूमेरिकल है। इसमें आपको तीन मीडियम दिए हुए हैं, ए बी एंड सी, और तीनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33, 1.50, 1.52। क्वेश्चन है आपका, इफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इन विच केस द चेंज इन स्पीड विल बी मिनिमम एंड मैक्सिमम, राइट। यानी कि वो पूछ रहा है कि अगर लाइट ए से बी जाता है या ए से सी जाता है या बी टू सी जाता है, राइट, किस केस में जो है वो चेंज इन स्पीड जो है वो मिनिमम होगी और मैक्सिमम होगी। तो इसका सिंपल सा एक कंसेप्ट है, वो क्या है कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होगा, राइट। अब बोलो एयर का 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसका 1.33 मान लेते हैं, राइट। एक को मेरे को मीडियम दिया हुआ है, इसमें एयर का 1 है, इसका जो है 2.42 है। तो देखो इसमें डिफरेंस ज़्यादा है, इसमें ऊपर वाले डिफरेंस क्या है, कम है। तो जितने डिफरेंस कम होगा उसमें लाइट की बेंडिंग क्या होगी, कम होगी। जितने डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर बेंडिंग ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी। तो आप देख सकते हो कि अगर लाइट ए से सी में एंटर करती है, ए मीडियम से सी मीडियम में एंटर करती है, तो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33, सी का है 1.52। तो ये डिफरेंस इसमें क्या है, मैक्सिमम है। तो अगर मैक्सिमम है तो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी, इसमें मैक्सिमम होगी। तो ए टू सी में हमारा जो है चेंज इन स्पीड मैक्सिमम होगी। और अगर लाइट जाता है हमारा बी टू सी में, राइट, बी टू सी में, अब देखो बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है, सी का कितना है 1.52 है। तो डिफरेंस कितने का, जस्ट 0.02 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंस काफ़ी कम है। तो इस वाले में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मिनिमम चेंज होगा। आई होप कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, राइट। जिस दो मीडियम के बीच में डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट भी सबसे ज़्यादा चेंज होगी, राइट। जिस दो मीडियम के बीच में डिफरेंस सबसे कम होगा वहाँ स्पीड भी सबसे कम चेंज होगी, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। A convex lens of focal length 25 centimeter and a concave lens of focal length 10 centimeter are placed in close contact with each other. Calculate the lens power of this combination. Okay? हमने दोनों का कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, राइट। तो हमारे पास एक है कॉन्वेक्स लेंस है और एक है हमारे पास क्या, कॉनकेव लेंस है। दोनों को बिल्कुल उन्होंने पास कर दिया है, राइट।
तो दोनों का फोकल लेंथ गिवन है, तो हमें पता है कि टोटल पावर जो है वो कैसे निकालते हैं, दोनों पावर का सम निकालते हैं, राइट। तो पावर कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, दोनों पावर को ऐड कर दो, आपके पास टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएगा। इसका मतलब हमें पी वन और पी टू चाहिए, लो भी। तो पी वन जो है वो होगा 1/f1 कॉन्वेक्स के लिए, तो हमारे पास f1 कितना दिया हुआ है, कन्वेक्स लेंथ का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो 1/25 इंटू 100 करना है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ जाएगा P1 इक्वल टू 4 डायप्टर आ गया हमारे पास, राइट। उसके बाद कनकेव का निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला लगाओगे 1/f2, ये आ जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई बाई 100 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो पावर जो आ गया वो आ गया, सॉरी यहाँ पर माइनस आना था आपका, राइट, -10 डायप्टर आ गया। कनकेव का पावर जो है फोकल दोनों नेगेटिव होते हैं, तो P2 -10 आ गया, P1 4 आ गया। तो अब पावर कॉम्बिनेशन निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो, तो 4 प्लस ऑफ -10, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -6 डायप्टर, राइट। इसके साथ वो एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। और वो पूछ लें कि द कॉम्बिनेशन विल एक्ट लाइक विच लेंथ, कि अगर आपने दोनों लेंस को कंबाइन किया है तो जो कॉम्बिनेशन जो है वो इट विल एक्ट लाइक अ व्हाट टाइप ऑफ लेंस, तो नेगेटिव ऑफ किसका होता है, नेगेटिव होता है कॉनकेव लेंस का, राइट। तो जो कॉम्बिनेशन है इट इज एक्टिंग लाइक अ कॉनकेव लेंस। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये भी बता देना, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मेथड। So 13th numerical is an object is kept at a distance of 4 meter in front of spherical mirror, which form its erect image at a distance of 1 meter from the mirror. What is its magnification? Is the mirror concave or convex? तो हमें ये भी बताना है कि जो वो मिरर है कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, राइट। तो अब इसमें गिवन क्या है, आपको ये गिवन है कि इमेज जो है वो इरेक्ट बन रहा है, राइट। अब इरेक्ट इमेज का मतलब है कि आपको पता है कि इरेक्ट इमेज इज ऑलवेज व्हाट, वर्चुअल, राइट, क्योंकि वो रिफ्लेक्स के ऊपर बनती है तो वो हमेशा वर्चुअल होती है। अब यहाँ पर एक दिक्कत क्या है कि इरेक्ट इमेज जो है वो दोनों में बनती है, कॉनकेव में भी और कन्वेक्स में भी। अगर यहाँ पर कॉनकेव में हम यहाँ रखते हैं तो इमेज आपका बिहाइंड मिरर है, वर्चुअल है, और आपका कॉन्वेक्स मिरर में भी, राइट, जो इमेज जहाँ मर्जी आप रखो, इमेज हमेशा जो है पोल और फोकस के बीच बनता है, छोटी बनती है, राइट। यहाँ पर तो दोनों ही केस में आप देखो इरेक्ट इमेज बन रहा है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, हम पहले मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं, राइट। तो अगर तो मैग्निफिकेशन जो है 1 से कम आता है, राइट, तो हमारा वो जो मिरर होगा वो होगा कॉन्वेक्स मिरर होगा। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा आता है तो वो होगा तुम्हारा कॉनकेव मिरर, राइट। राइट, ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि m होता है h डैश बाय h। तो इस केस में हाइट बड़ी हो गई, राइट, हाइट बड़ा है और इमेज का ऑब्जेक्ट छोटा है, तो इसका आंसर नेचुरली ग्रेटर बनाने वाला है। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए यानी कि हाइट ऑफ इमेज बड़ी हो जाए और ऑब्जेक्ट छोटा हो जाए तो इसका आंसर जो है लेस देन बनाने वाला है, राइट। इसलिए मैंने बोला कि लेट्स फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन। चलिए देखते हैं। तो पहले तो आपको क्या गिवन है, आपको यू दिया हुआ है -4 मीटर, राइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं, और इन्होंने बताया है कि इमेज जो है वो 1 मीटर में बन रहा है मिरर से, राइट। ओके, क्योंकि ये जो है आपका इमेज बन रहा है वर्चुअल, तो दोनों ही केस में ऑप्टिकल सेंटर से अगर डिस्टेंस नापोगे तो आपका डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव ही आने वाला है, यानी कि v की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो मैंने यहाँ पर 1 मीटर पॉजिटिव ले लिया है, राइट, क्योंकि हमारे पास इमेज कैसी है, हमारे पास इमेज है इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो जब भी इमेज इरेक्ट और वर्चुअल है तो आपका v पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, राइट। अब हमारा m का जो फॉर्मूला होता है मिरर के लिए होता है -v/u, राइट। तो ये आ गया माइनस, v की वैल्यू 1 है, u आपका कितना है -4 है, राइट। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 1/4 आ गया, जिसकी वैल्यू लेस देन 1 है। अब ये शो करता है कि जो इमेज है वो क्या है, डिमिनिश्ड है, क्या है, राइट। m की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, इसका मतलब जो हमारी जो इमेज बन रही है
वो कौन सी बन रही है? इमेज इज डिमिनिश्ड। इमेज हमारी डिमिनिश्ड बन रही है। डिमिनिश्ड इमेज किस बनती है? कॉनकेव में या कॉन्वेक्स में? ऑफ कोर्स कॉन्वेक्स में। तो यहाँ पर जो हमारा मिरर है वो कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो अभी ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 13 हो गया। चलिए देखते हैं 14th न्यूमेरिकल। So 14th numerical is a spherical mirror produces an image of magnification -1 on a screen, right? So write the type of mirror, find the distance of image from the object, what is its focal length of the mirror, draw the ray diagram to show the image formation in this case. चलिए, तो इन्होंने मिरर भी नहीं बताया हुआ है, तो हमें क्या मैग्निफिकेशन दिया हुआ -1, राइट? तो अब आपको पता है कि अगर m की वैल्यू -1 दिया हो, इसका मतलब क्या हुआ? अब नेगेटिव साइन क्या शो करता है? तो एक तो इमेज जो है वो बन रही है रियल, ठीक है? जब भी m की वैल्यू नेगेटिव है तो हमें पता होना चाहिए कि इमेज कैसे बन रही है? रियल बन रही है। और 1 क्या शो करता है? आपको पता है कि m का फॉर्मूला जो होता है वो होता है h'/h। तो 1 कब आ सकता है? जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दोनों कैंसिल कब होंगे? तो हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होगा? सेम होगा, राइट? तो वो इमेज है आपका रियल, राइट? और 1 जो शो करता है वो क्या शो करता है? 1 शो करता है कि हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट क्या है? सेम है, राइट? अब बताओ कि कौन सा मिरर जो है वो रियल और सेम साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट जो बनाता है, वो कौन सा बनाता है? वो बनाता है कॉनकेव मिरर, राइट? तो कॉनकेव मिरर के अगर आप सी पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज भी क्या बनती है? सी पे बनती है, सेम साइज का बनता है और रियल बनता है, राइट? तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो ऑलरेडी आ चुका है, राइट? सॉरी, मेरा न्यूमेरिकल थोड़ा हिल गया था, अभी क्वेश्चन कहीं ऊपर नीचे हो गया था। चलिए अब ठीक है। अब हमारा जो 14 न्यूमेरिकल हमारे सामने है। तो a spherical mirror produces image of magnification -1 on the screen, place a distance 50 cm from the mirror। यानी कि इमेज का डिस्टेंस यहाँ से हमें 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट? तो एक तो फर्स्ट का आंसर तो हमारा आ गया। टाइप ऑफ मिरर कौन सा है? ये हमारा कॉनकेव मिरर है, राइट? ये हमारा कॉनकेव मिरर है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो भी 50 होगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका 50 दिया हुआ है तो ये भी कितना होगा? 50 होगा। दोनों सेम होंगे, राइट? फोकल लेंथ कितना होगा? अब पता है जब सी पे बन रहा है ऑब्जेक्ट तो फोकल लेंथ जो है वो आर का क्या आधा होता है? तो फोकल लेंथ हमारा क्या आ गया? वो आर का आधा आ गया, दैट इज 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर आ गया, करेक्ट है? रे डायग्राम मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका ऑरली सॉल्व हो जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि आपको m इक्वल टू -1 दिया होता है। तो ये पॉसिबल तभी है जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा हो तो इमेज भी सी पे बनती है, तो डिस्टेंस जो है वो दोनों का सेम होता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 15 पे। The linear magnification produced by a spherical mirror is +1/3। तो आपको m की वैल्यू जो दी है वो दी है +1/3। तो एनालाइजिंग दिस वैल्यू, स्टेट द टाइप ऑफ मिरर, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, राइट? तो पहले तो इन्होंने सिर्फ मैग्निफिकेशन दिया है, इसी से आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मिरर कौन सा है और ये केस कौन सा है। तो पहले तो जो प्लस वैल्यू है वो आपको शो करता है कि जो इमेज है वो होगा वर्चुअल इमेज होगा, राइट? तो प्लस पॉजिटिव साइन ऑफ मैग्निफिकेशन शोज इमेज इज वर्चुअल। और 1/3 यानी कि फॉर्मूला होता है h'/h। तो आप देख सकते हो हाइट ऑफ इमेज जो है वो छोटी आ रही है ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब जो इमेज है वो बन रही है, कैसी बन रही है? डिमिनिश्ड बन रही है। तो आपको m से ये दो इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक तो इमेज वर्चुअल है और दूसरा इमेज क्या है? डिमिनिश्ड है, राइट? तो अब ये किस केस में आपका ये बनता है, राइट?
कौन सा जो मिरर है वो वर्चुअल एंड डिमिनिश इमेज बनाता है? इज राइट, यू राइट। तो वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सॉरी मैंने ये कनकेव बना दिया, ये मैंने कनकेव बना दिया। तो आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है वो आपका बनाता है, राइट, डिमिनिश्ड इमेज बनाती है ये ऐसे वाली। तो रे डायग्राम खुद बना सकते हो, राइट, ये आपका बुक में दिया हुआ है। तो यू मेक रे डायग्राम योरसेल्फ। तो आपको जो जो चाहिए थी वो मैंने दे दिया है। इमेज जो है वर्चुअल और डिमिनिश्ड है, और ये वाला केस आपने अपनी कॉपी पे बना देना है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेरिकल नंबर 16 की तरफ। Rohit placed a pencil perpendicular to principal axis in front of converging mirror. तो converging mirror मतलब हमारे पास कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, राइट, of focal length 30 centimeter. The image formed is twice the size of pencil. Calculate distance of object from the mirror. अब इन्होंने इसमें फोकल लेंथ हमें नहीं दिया हुआ है, राइट, और अब वो बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालो, कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो सकता है, राइट। तो हमें दिया क्या हुआ है? आपको दिया हुआ है फोकल लेंथ इसका कितना है? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। तो और अब हमें मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है 2, ट्वाइस द साइज ऑफ पेंसिल। अब इसमें इस मेरिकल में एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या आएगी? हमें ये नहीं पता है कि जो ऑब्जेक्ट डबल साइज का बन रहा है वो रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है। तो हमें रियल और वर्चुअल नहीं दिया हुआ है, तो हमें दोनों ही केस के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, अब मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच डैश बाई एच। इन्होंने दिया हुआ है कि जो इमेज है वो ट्वाइस है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, तो आपका एम की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2। अब हमें क्योंकि नहीं दिया हुआ है कि वर्चुअल रियल है, तो आपको एम की दोनों वैल्यू देनी पड़ेगी, राइट। तो रियल के लिए और वर्चुअल के लिए, तो रियल में एम की वैल्यू आ जाएगी -2 और वर्चुअल में एम की वैल्यू आ जाएगी +2, राइट। दोनों ही केस आपको लेने पड़ेंगे। तो अब हमारे पास मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मिरर के लिए -v/u। अगर मैं यहाँ पर +2 लेता हूँ, राइट, +2 लेता हूँ, तो यहाँ से मेरी जो u की वैल्यू है या v की वैल्यू है वो आ जाएगी -2u, राइट। और अगर मैं m की वैल्यू जो है वो लेता हूँ नेगेटिव, राइट, ये जो नेगेटिव वैल्यू ली मैंने, अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ, राइट, तो वहाँ से मेरी v की वैल्यू जो आएगी वो +2u आ जाएगी। देखो ये मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई, v की वैल्यू +2 भी आ गई और -2 भी आ गई, राइट। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, राइट। फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है। चलिए अब दोनों ही केस के लिए हम निकालते हैं फोकल लेंथ, राइट, नेगेटिव के लिए भी और पॉजिटिव के लिए भी। तो मिरर के लिए फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/u + 1/v। तो 1 बाय आपका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ? 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कनकेव है, कनकेव के लिए फोकल लेंथ होता है माइनस में होता है, -30 हो गया आपका, राइट। और 1/u, ओके, -1/2u, ओके। मैंने यहाँ पर ये वाली वैल्यू ली है। अभी मैं इस वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहा हूँ नेगेटिव के लिए। तो v की वैल्यू -2u है, तो ये माइनस ऊपर जाके -1/2u हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा आ गया -1/30 इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2u। यहाँ पर 2 नहीं है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 - 1 आ जाएगा। तो ये आ गया -1/30 इक्वल टू 1/2u। तो हमारे पास 2u इक्वल टू -30 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दिस u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तो भी आपका u जो है -15 सेंटीमीटर आ चुका है, राइट। अब इसी तरह अगर मैं, राइट, v की वैल्यू प्लस में लेता हूँ, +2u वाला लेता हूँ, तो इसमें क्या होगा भाई? इसमें आ जाएगा 1/-30 इक्वल टू एलसीएम आ गया 2u, और ये आ जाएगा 2 + 1, तो -1/30 इक्वल टू 3/2u। तो ये आ जाएगा
2u इक्वल टू -30 × 3 और u आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -30 × 3/2, ये कट गया 15, राइट। तो u की वैल्यू आ गई -45 सेंटीमीटर। देखिए, तो ये दोनों ही वैल्यू आ गई, राइट। तो अगर तो u की वैल्यू -15 है, मीन्स देखो आप फोकल लेंथ हमारा कितना दिया, 30 दिया हुआ है। अगर फोकल लेंथ 30 है तो ये वाला केस में क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, वो फोकस और पोल के बीच में पड़ा हुआ है, तो इस केस में इमेज बनेगी वर्चुअल। ओके। और इस केस में क्या है, u कितना दे रहा है, 45 दे रहा है, फोकल लेंथ 30 है, तो यानी कि ये पड़ा हुआ है आपका बिटवीन सी एंड एफ। और बिटवीन सी एंड एफ होता है तो इमेज बनती है बियॉन्ड सी और बड़ी बनती है, राइट। तो इस मेरिकल में आपको दोनों ही केस सॉल्व करने हैं, अगर आपको रियल और वर्चुअल ना दिया हो तो। आई होप दिस ये वंडरफुल दिस मेरिकल, और ये मेरिकल इंपॉर्टेंट भी है, राइट। इसमें कुछ कंसेप्ट भी था ऐसा। चलिए चलते हैं मेरिकल नंबर 17 की तरफ। If refractive index of water is 4/3, that of glass is 3/2, find refractive index of glass with water। आई थिंक ये न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। चलिए कोई बात नहीं, है ना, अब ये आ ही गया तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो जैसे हमने पहले भी किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, राइट। तो ये हमारी ये वैल्यू हमें दी हुई है 3/2 अपॉन वाटर का हमारा दिया हुआ है 4/3। तो ये आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ये आ जाएगा हमारा पास 9/8। तो ये हमारा आंसर आ गया है रिप्रेजेंटेंट का, राइट। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ। ओके, 18 न्यूमेरिकल। A student focused the image of candle flame on a white screen using a convex lens. He noted down the positions of candle flame, screen and lens as given below. Position of candle flame 12 centimeter, position of lens 50 centimeter, position of screen 88 centimeter. And find focal length of convex lens, position of image of candle flame, it is shifted towards lens at a position of 31 centimeter, and nature of image formed with candle flame is further shifted towards the lens, right। अब इस न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, बड़ा मजा आएगा इसको करने में, राइट। अब दिक्कत क्या है कि इसमें इन्होंने कोई भी डिस्टेंस जो है वो पोल से नहीं दिया हुआ है, राइट। ये डिस्टेंस इन्होंने पोल से नहीं दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं कि चलो जहाँ स्टूडेंट खड़ा है, मान लें कि आपका जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस नापता हूँ, राइट, तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस नापता हूँ यहाँ तक के लिए, राइट, यहाँ तक के लिए, राइट। तो यहाँ से वो देखता है तो कैंडल का पोजीशन जो है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर पे। तो उसके जो कैंडल है वो यहाँ पर, यहाँ ये इसका कैंडल है 12 सेंटीमीटर पे, राइट। ये आपका जो कैंडल है वो यहाँ कितना है, 12 सेंटीमीटर पे है जी, राइट। तो यहाँ से जो डिस्टेंस ऑफ कैंडल है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर पे है। और कितना दिया, पोजीशन ऑफ लेंस, लेंस पड़ा हुआ है 50 सेंटीमीटर पे, यानी कि चलो मैं यहाँ पर आपका एक लेंस बना देता हूँ। तो नेक्स्ट लेंस दिया हुआ जी, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है उससे जो लेंस का डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, एंड पोजिशन ऑफ स्क्रीन, और स्क्रीन लिखा हुआ है 88 सेंटीमीटर पे, यानी कि यहाँ पर कहीं पर स्क्रीन। अब आपको पता है कि जो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है तो इमेज जो है वो यहाँ पर रियल बनेगी और नीचे बनेगी। तो आपका जो स्क्रीन है, जो ये हमारा स्क्रीन रहा, ये हमारा स्क्रीन है, और ये यहाँ से कितनी दूर है, ये यहाँ से अराउंड कितना दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर पे दिया हुआ है, राइट। तो बोल रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो अब हमें यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं दिया, तो चलिए पहले हम वो फाइंड करते हैं। देखो कैसे फाइंड करना है। अगर यहाँ से 12 सेंटीमीटर पे आपका कैंडल पड़ा हुआ है और बॉय से 50 सेंटीमीटर पे लेंस पड़ा हुआ है, तो अगर मैं 50 में से 12 माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा,
मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना, 50 में से मैंने 12 को माइनस किया तो ये आएगा मेरा 38 सेंटीमीटर, राइट। 50 12 माइनस किया तो ये सबको आ गया 38 सेंटीमीटर, सॉरी 38 सेंटीमीटर आ गया। तो मेरे पास यू आ गया जी। मेरे पास यू देखो ये आ रहा है ना ऑप्टिकल सेंटर से, तो मेरे पास यू आ गया -38 सेंटीमीटर। देखो भी मैंने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल दिया है। अब आपका अगर मैं 88 पे से ये 50 माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, मेरे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं 88 में से 50 को माइनस करता हूँ तो ये भी मेरा 38 आ रहा है। लो, ये भी आ गया 38 सेंटीमीटर। मेरे पास v की वैल्यू आ गई +38 सेंटीमीटर। तो ये तो भाई क्लियर कट केस हो गया कि ये जो है दोनों 2f पे पड़े हैं जी, क्योंकि u और v सेम आ रहा है, तो मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज जो है 2f पे पड़े हैं और इसका साइज भी सेम होगा, राइट। राइट, अब 2f पे है तो अगर 2f पे पड़ा हुआ है तो अगर 2f 30 है तो f कितना हो जाएगा, f का आधा हो जाएगा, यानी कि 38/2 कितना आ जाएगा, 19 सेंटीमीटर आ गया जी। तो भी मेरे पास फोकल लेंथ भी आ गया डायरेक्ट 19, बिना सॉल्व के ही मेरा फोकल लेंथ आधा हो गया। देखो आ गया 19 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ निकल गया मेरा 19 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ मेरा आ गया 19 सेंटीमीटर, राइट। अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम इफ इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेंथ एट अ पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। तो पहले तो मैं यहाँ फोकल लेंथ निकाल दूँ। मेरी यहाँ पर फोकल लेंथ के बीच में हो गई। तो फोकल लेंथ मेरे पास आ गया है कितना, ये आ रहा है 19 सेंटीमीटर। ये मेरा एफ आ गया यहाँ पर। अब वो बोल रहा है कि अगर कैंडल फ्लेम को 31 सेंटीमीटर पे शिफ्ट कर दें, 31 सेंटीमीटर पे अगर मैं शिफ्ट कर दूं कैंडल फ्लेम को, यानी कि यहाँ से 31 सेंटीमीटर पे ये आ जाएगा कहीं पर बीच में, कहीं पर आ जाएगा ना 31 सेंटीमीटर पे। तो अगर मैं 50 में से 31 को माइनस करता हूँ, तो मेरा आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 119। 19 देखिए, अगर मैं यहाँ पर कहीं भी रखता हूँ है ना, मान ले यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ अगर 31 पे रखता हूँ, मेरे पास 31 पे कैंडल फ्लेम को ले गया, अगर मैं 50 में से 31 माइनस कर रहा हूँ तो मेरा आंसर 19 आ रहा है। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट को कहाँ ले गए, वो फोकस पे ही ले गए हैं। दे हैव टेकन द ऑब्जेक्ट टू द फोकस, राइट। और अगर फोकस पे पड़ा है तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। लो अभी, तो इमेज हमारी बनेगी इन्फिनिटी पे, राइट। सेकंड आंसर भी क्लियर हो गया अभी, राइट। थर्ड है, स्टेट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ द कैंडल फ्लेम इज फर्दर शिफ्टेड टुवर्ड द लेंस। अगर मैं कैंडल फ्लेम को और आगे ले जाऊं, यानी कि अगर और आगे ले गया तो वो फोकल लेंथ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाएगा तो इमेज क्या बनती है, इमेज बनती है लेंस के इस तरफ, वर्चुअल इमेज बनती है, राइट। तो हमारी जो है कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनती है। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं कन्वेक्स लेंस के, तो इमेज बनती है वर्चुअल। तो लास्ट वाला जो केस है वो है वर्चुअल इमेज। आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल था। चलिए चलते हैं हम अपने सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, दैट इज 90th न्यूमेरिकल। So 90th numerical is size of image of an object by a mirror having focal length 20 centimeter is observed to be reduced to one third of its size. At what distance the object has been placed from the mirror? What is the nature and size? अब देखो बेटा जी, ऐसा है कि इसमें आपको दिया ही नहीं हुआ कि कन्वेक्स या कनकेव मिरर है, राइट। लेकिन ये क्या दिया हुआ है कि जो इमेज है वो छोटी बन रही है जी। अब इमेज छोटी तो कनकेव में भी बनती है। कब बनती है, आप जब ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के में आप बियॉन्ड सी रखते हो ऑब्जेक्ट को, राइट। इमेज का बनती है बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ छोटी बनती है। तो ये वाला भी केस भी हो सकता है, राइट। और किस केस में छोटी बनती है, हाँ, अगर कन्वेक्स मिरर है हमारा, कन्वेक्स मिरर में, राइट, जहाँ मर्जी ऑब्जेक्ट रख दो इमेज बनती है बिटवीन
एफ एंड पी, यहाँ भी आपकी छोटी बनती है। तो ये दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, तो हमें क्लियर नहीं है कि कौन से केस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों ही केस कंसिडर करने पड़ेंगे, राइट। हमें दोनों ही केस कंसिडर करने पड़ेंगे। चलिए, अगर तो आप ये वाला कॉनकेव का केस कंसिडर करते हो, तो इस केस में जो m की वैल्यू है वो आ जाएगी -1/3, राइट। क्योंकि कनकेव जो है वो बन रहा है रियल इमेज, और रियल इमेज के लिए m जो है वो नेगेटिव होता है, -1/3 ले लिया, राइट। तो हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है -v/u के बराबर होता है मिरर के लिए, राइट। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और आपका जो आ गया 1/3 इक्वल टू v/u, दिस इम्प्लाइज दिस, राइट। v इक्वल टू कितना आ गया, u/3 आ गया। लो जी, आपका v की वैल्यू यहाँ पर आ गई, कितनी आ गई, u/3, राइट। अब इसी ही केस अगर मैं कॉन्वेक्स पे करता हूँ, सेम स्टेप, राइट। कॉन्वेक्स के लिए जो है m की वैल्यू मैं लूँगा +1/3, राइट। ये इक्वल टू हो गया -v/u। तो यहाँ से जब आप v निकालोगे तो ये आ जाएगा -u/3। तो यहाँ पर माइनस, सेम स्टेप लगाया है, राइट। तो यहाँ मैं नेगेटिव में आ गया, यहाँ पर v पॉजिटिव में आ गया। अब हम लगाते हैं मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f लगा दिया हमने। तो यहाँ वैल्यू पुट करें, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है u/3, तो 3 ऊपर चले जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3/u आ गया, प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये u एलसीएम आ गया, 3 + 1 आ गया 4 इक्वल टू 1/f आ गया, राइट। तो ओके, तो फोकल लेंथ हमें यहाँ पर दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, राइट। तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो आपका आ जाएगा 4/u इक्वल टू फोकल लेंथ। अब क्योंकि आप कनकेव मिरर की बात कर रहे हो, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो 1/-20, तो ये आ जाएगा आपका u इक्वल टू -20 × 4, तो u आ गया -80 सेंटीमीटर। ओके, करेक्ट। नाउ कनकेव कन्वेक्स के लिए निकालना है, तो आप सेम फॉर्मूला यूज़ करोगे, राइट। सेम फॉर्मूला आपने यूज़ किया, मिरर है, राइट। तो इस केस में आप v की वैल्यू क्या पुट करोगे, v की वैल्यू पुट करोगे -u/3, तो ये 3 ऊपर चले जाएगा, राइट, नीचे u आ जाएगा, प्लस 1/u इक्वल टू 1/f की वैल्यू क्या पुट करोगे, +20। कन्वेक्स है, कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव में होता है, तो ये आ गया आपका। तो ये आ जाएगा एलसीएम आपका u आ गया है, ये आ गया -3 + 1 इक्वल टू 1/20। इट कम्स आउट टू बी -2/u इक्वल टू 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। तो ये आपका u आ गया कॉन्वेक्स के लिए। तो ये न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था, राइट। इसमें भी हमें दोनों ही केसेस लेने पड़े, तो आप ख्याल रखना भी, अगर आपको ना गिवन हो कि रियल बन रहा है या वर्चुअल इमेज की बात कर रही है, क्योंकि दोनों ही केस में इमेज छोटी बनती है, तो आपको एग्जाम में दोनों ही केस सॉल्व करने पड़ेंगे, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अब आपके लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर। चलिए, आज का लास्ट न्यूमेरिकल हमारा है, इफ ए चाइल्ड क्रॉल्स टुवर्ड्स द मिरर एट द रेट ऑफ 0.20 मीटर पर सेकेंड, देन एट व्हाट स्पीड विल बी द चाइल्ड एंड हर इमेज कम नियर बाय टू ईच अदर। देखिए, अब यहाँ पर मैं चाइल्ड जो है वो, मैं क्रॉलिंग मुझे बनाना आता नहीं है, तो मैं ना स्टैंडिंग चाइल्ड बना देता हूँ, राइट। और ये रहा मिरर, प्लेन मिरर है, राइट। और ये चाइल्ड जो है वो मिरर की तरफ जा रहा है विद स्पीड ऑफ 0.20 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब क्या होगा कि जो इसकी अंदर इमेज है, राइट, उसके जो अंदर इमेज है, राइट, वो भी जो है, अगर मान लो कि मैं इमेज यहाँ शो कर देता हूँ, वर्चुअल इमेज यहाँ शो करता हूँ, तो जब जैसे तो वो यहाँ जाएगी, तरफ जाएगा, तो इमेज भी उसके क्या आ रही है, पास में आ रही है, राइट। तो इसकी भी इमेज कितनी होगी, इमेज की स्पीड भी कितनी होगी, 0.20 मीटर पर सेकेंड होगा, दोनों की स्पीड सेम होगी, राइट। तो एट व्हाट स्पीड विल द चाइल्ड एंड आवर इमेज कम नियर टू ईच अदर, दोनों ही किस स्पीड से आपस में पास में आ रहे हैं। तो ये भी 0.20 से चल रहा है, ये भी 0.20 से चल रहा है, इमेज एंड ऑब्जेक्ट,
तो जो टोटल स्पीड होगी वो हो जाएगी 0.20 प्लस 0.20, दैट विल बी 0.40 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर होगा। ओके, आई होप आपको आज के सारे न्यूमेरिकल्स समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट हो तो यू कैन डीएम मी, आप मैसेज कर सकते हो फेसबुक पे या आपके यूट्यूब पे आप कमेंट दे सकते हो। तो मैं आपको जो भी न्यूमेरिकल जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।